Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is Medicare channel, and in this video we are going to discuss about the direct acting cholinergic agonist. In the previous lecture we have discussed about the cholinergic receptors, and we have discussed about the muscarinic and nicotinic receptors, and now we are going to see what is the direct acting cholinergic agonist. Okay, so we have seen that what are the agonists. So cholinergic agonist is always defined as a stimulator. So the any substance which is going to stimulate your cholinergic receptors is called as cholinergic agonist. So it is going to activate it, it is going to stimulate it. So now we are going to see there are the two types of cholinergic agonist. Okay, so as it is written here, you can see here. So this is the cholinergic system. It is divided into the two types of drug. One is the cholinergic agonist drug. Second is the cholinergic antagonist drug. Antagonist is already defined as it is going to oppose. Okay, it is going to be adverse. It is going to be opposite of it. Then the cholinergic agonist drug is again divided into direct acting and indirect acting drugs. So direct acting, what is mean by direct acting drugs? So direct acting drugs mean that it is going to directly act on the receptor. But we have another type of the drugs which are called as indirect drugs. These drugs don't act on the receptors. These drugs initiate another type of system and goes to interact with it. But now in today's lecture we are only going to discuss the direct acting drugs. So direct acting drugs are of two types, two natures. One is the ester nature, other is the alkali nature. So in the ester nature, we have three types of drug, which is acetylene, bathmacol, and C for carbachol. You can revise them with the A, B, C, and M. So A for acetylcholine, B for bathmacol, C for carbachol, and M for methacol. So these are the four types which are ester in nature. Means what is this? Because the ester group will be present in these drug structure, and I will show what the structure of this drug is. Second is the alkaline nature. So pilocarpine and nicotinic drug contain alkaloid nature in them. So now we are going to see what is written in the Lippincott book. So here you can see the cholinergic agonist is going to mimic mice. What is mean by mimic mice? It is means to uh, uh, to act like someone. Okay, so there are the videos which are present on the YouTube, and they are mimicking each other. They are acting like other. So now here we have a person which is, so let's consider it is a person cholinergic agonist. It is going to mimize another person which is acetylcholine. So it is going to act like it. Okay, the functions which are performed by it, it will be going to this. So it is acting like this acetylcholine by binding direct with the cholinergic receptors. So it is going to bind it directly. And what are the two types of cholinergic receptor? It is muscarinic and nicotinic. So it can bind with both, or can be bind with one of them, and can be bind with none of them. तो कभी भी नहीं होगा. It will always bind to both of them, yeah, one of them. So these agents must be bounded and classified to the two groups. First is the choline ester, mean they having ester in them, and this is acetylcholine, synthetic esters of choline, and such as carbamazole and bethmacol. So acetylcholine is endogenous. It could be present, it is present inside our body as a neurotransmitter. So acetylcholine is our parasympathetic neurotransmitter. So parasympathetic means it is also acting in the sympathetic nervous system as well as in the parasympathetic nervous system. So as I have explained in my previous video, so you can see this video to clear this concept. So now the other group is the naturally occurring alkaloids. So alkaloids include nicotinic and pilocarpine drugs. Now all the direct acting cholinergic drugs have long duration action than the cholinergic. So जो naturally तौर पे cholinergic acetylcholine choline जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, उससे भी ज़्यादा ये जो है ना लंबा ड्यूरेशन करते हैं, लंबा इनका एक्शन होता है.
थेरापेटिकली यूज़फुल है ये ड्रग्स, हम यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन ड्रग्स से। और वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, एक तो पाइलोकार्पिन और बाथमाकोल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट मैं ये नहीं कह रही कि हर ड्रग ये यूज़ होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एसिटाइलिन है, हम इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम इसको पेशेंट में नहीं दे सकते। इसके कुछ रीजंस है, वो मैं आपको जब ये एसिटाइलिन पढ़ाऊँगी तो मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँगी, ठीक है। सो इसलिए ज़्यादातर जो मोस्टली थेरापेटिक यूज़ के लिए ड्रग्स जो यूज़ की जाती हैं, उनमें पाइलोकार्पिन और बाथमाकोल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। बाकी जो ड्रग्स हैं उनका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसलिए हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। सो ये क्या है, प्रोफेशनली बाइंड करते हैं आपके मस्कुलर रिसेप्टर्स के साथ, और आपके इनको हम कह सकते हैं मस्कुलर एजेंट्स, ठीक है। ये इन्होंने सिर्फ स्पेशल पाइलोकार्पिन और बाथमाकोल की बात की है कि ये सिर्फ मस्कुलर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। मैंने आपको कहा कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। मैंने कहा या तो दोनों पे बाइंड करेंगे, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो दोनों पे बाइंड करती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो सिर्फ मस्कुलर पे एक्ट करती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो दोनों पे ही करेंगी। सो इस तरह की कुछ ड्रग्स आ जाती हैं। जब हम बात करेंगे पाइलोकार्पिन की और बाथमाकोल की, तो वहाँ आप देखेंगे कि वो सिर्फ मस्कुलर रेनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, निकोटिनिक पे एक्ट नहीं करेंगे। ना आप देख सकते हैं कि इनकी स्पेसिफिटी तो थोड़ी सी लेस है। then हमारे पास आ जाता है एसिटाइलिन कोलिन। एसिटाइलिन कोलिन, अच्छा, तो हम लोग अब बात करते हैं एसिटाइलिन कोलिन की। सो हम एसिटाइलिन कोलिन जो है, ये हमारे पास क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है। अब एसिटाइलिन कोलिन दो तरह के होते हैं, ये टर्शियरी अमोनियम कंपाउंड भी है और क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड्स भी होते हैं। अगर ये टर्शियरी अमोनियम कंपाउंड्स होंगी, ठीक है, तो ये नॉन पोलर नेचर के होंगे। नॉन पोलर का क्या मतलब होता है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा क्या है, ये लिपोफिलिक होंगे। लिपोफिलिक मीन्स लिपिड लविंग होंगे। इसी के अलावा अगर हम देखें क्वार्टरी अमोनियम की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये पोलर भी हो सकते हैं, यानी इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। और दूसरा ये हाइड्रोफिलिक होंगे। अब आप बताएं इन दोनों में से ज़्यादा बेनिफिशियल कौन होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एसिटाइलिन कोलिन हमारे ब्रेन में जाए। अब क्यों नहीं चाहते और हम इसे क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये है क्वार्टरी अमोनिया, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगा। और टर्शरी जो अमोनिया है ये क्रॉस कर सकता है। आप देख रहे हैं कि लिपोफिलिक है, लिपिड लविंग है, तो इजीली क्रॉस करेगा। चार्ज भी ऊपर से नहीं है, तो और ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन ईजी होगी, जबकि क्वार्टरी की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इसलिए ये मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। अब मैंने आपको कहा कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये पैरासिम्पथेटिक में भी यूज़ हो रहा है, सिम्पथेटिक में भी यूज़ हो रहा है, और सोमेटिक नर्व्स के लिए भी यही यूज़ हो रहा है, ठीक है। बट क्या है कि हम इसको थेराप्यूटिक्स के लिए इसकी इम्पोर्टेंस कम है। क्यों कम है, इसको हम पेशेंट को क्यों नहीं दे सकते, इसकी कुछ रीजंस है जो यहाँ लिखी हुई हैं। दो रीजंस है इसकी। सबसे पहली रीज़न जो है, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड में लिखी हुई है, बट मैं इसका आपको बिल्कुल ईजी करके बताऊँगी। इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शंस होती हैं लीडिंग टू द डिफ्यूज इफेक्ट्स। तो मैंने आप लोगों को कहा कि जो एसिटाइलिन कोलिन है, ये दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करता है। ये मस्कुलर पे भी एक्ट कर रहा है, ये कोलिनर्जिक पे भी एक्ट कर रहा है। अब क्योंकि अब आपको पता है कि मस्कुलर रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। आप सब लोगों को पता है कि मस्कुलर रिसेप्टर हमारे पास तकरीबन बहुत सारे मेजर जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है, हमारे स्मूथ मसल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं ब्लडर के अंदर ये हमारे पास है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर भी मस्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं। सो अब अगर आप देखें कि निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे हैं, तो निकोटिनिक रिसेप्टर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के होते हैं, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये एड्रेनल मेडुला पे भी होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में है, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शंस के ऊपर भी ये प्रेजेंट है। सब आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे मेजरली जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन सब में ये दोनों ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब जब आप एक्सरसाइजिंग कोलिन किसी पेशेंट को देंगे एज अ फॉर्म ऑफ ड्रग, तो वो क्या करेगा, वो इन सब रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। चाहे वो हार्ट के अंदर है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, हर वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा डिफ्यूज इफेक्ट आएगा। सो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिफ्यूज इफेक्ट होगा कि पेशेंट की बॉडी उसको हैंडल नहीं कर सकेगी, या किसी भी इंसान की बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। इसलिए हम लोग इसको नहीं देते हैं। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास रैपिड
इसका जो है ना कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होता है, आपको पता है ये एंजाइम एसिटाइलिन कोलिन को ब्रेक कर देता है, इसको एसीटेट और कोलिन में डिवाइड कर देता है। सो अब वो इसके ऊपर जल्दी से एक्ट कर देता है। इट्स मीन क्या है कि इस एसिटाइलिन कोलिन को अगर हम ड्रग की फॉर्म में देंगे तो इसकी हाफ लाइफ कम होगी। सो अब जब किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ कम है, इट्स मीन कि वो जल्दी से मेटाबोलाइज हो रहा है, तो ये अपना इफेक्ट ही शो नहीं कर सकेगा। सो अगर आपने किसी पेशेंट को दे भी दिया एसिटाइलिन कोलिन, तो पहली बात यह है या तो मल्टीपल एक्शन हो जाएंगे, या इससे भी बेहतर ये हो जाएगा कि वो मेटाबोलाइज हो जाएगी इस एंजाइम के ज़रिए से और कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। इसलिए हम एसिटाइलिन कोलिन को थेरेप्यूटिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों डिक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि हम एसिटाइलिन कोलिन जो है ये हमारे पास कहाँ पर है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हुए क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता था आपको सब लोगों को ये पता है, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होती है। सो ये यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि वैगल स्टिमुलेशन आ जाती है। वैगल नर्व आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ी हुई है। हमारे पास जो है ना वो कार्डियक नर्व के अंदर एक वैगस नर्व आती है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमेशा हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेशन, तो रेस्ट है तो हार्ट रेट कम ही होगा। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी हमारे पास कम होता है। ब्लड प्रेशर कैसे कम होता है? जब एसिटाइलिन कोलिन आपके M3 रिसेप्टर्स जो कि आपकी ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स के सेल के अंदर है, यानी आपकी ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के अंदर आपको पता है हर ब्लड वेसल में स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स के सेल की एंडोथेलियल लाइनिंग पे M3 रिसेप्टर कौन से हैं? ये मस्कुलर रिसेप्टर्स जो है इनको हम 5 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, M1 M2 M3 M4 एंड M5 में। तो M3 रिसेप्टर्स के पार्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और एसिटाइलिन कोलिन इन रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करेगी। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये आपके जो स्मूथ मसल्स की वॉस्कुलर सेल ये स्मूथ मसल है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जो प्रोटीन काइनेज जी है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपके स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे तो आपके जो वॉस्कुलर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो अपना फंक्शन करेंगे, और जो एसिटाइलिन कोलिन है वो रिलीज नहीं होगा ब्लड के अंदर। तो ये सिग्निफिकेंट इसकी क्वालिटी ये आ जाती है, जिसकी वजह से आपके क्या होगा कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, और जैसे ही ब्लड वेसल आपको पता डायलेट होता है तो आपके पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्लॉकर दिखाया हुआ है। कौन सा ऐसा ब्लॉकर है जो मस्कुलर रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा? ठीक है, क्योंकि ये तो इसको एक्टिवेट कर रहा था ना। अब ब्लॉकर के लिए हम एट्रोपिन यूज करते हैं, ये उसको ब्लॉक कर देगा और वेसोडाइलेशन नहीं होने देगा। अब आप एट्रोपिन कब देंगे एक पेशेंट को? बहुत ही सिंपल केस है कि जिस भी पेशेंट का आपके पास आप नोटिस करते हैं कि एक आपके पास पेशेंट आया है जिसमें बहुत ज़्यादा वेसोडाइलेशन हुई हुई है, और आपने उसकी वेसोडाइलेशन को कम करें, मीन उसका बीपी बहुत ज़्यादा कम है, आप क्या देंगे उसको? एट्रोपिन दे सकते हैं। वो क्या करेगी, आपके इन मस्कुलर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करने से क्या होगा, एसिटाइलिन कोलिन आके उस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर सकेगा। जब भी वो बाइंड नहीं करेगा तो आपको ब्लड डायलेट नहीं होगा और ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा। कुछ अदर एक्शंस हैं इसकी जीआईटी पे हैं, जैसे ये जाहिर बात है, मैंने आपको कहा कि इसने बिल्कुल वही काम करना है जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो रहा था। हार्ट रेट कम हो रहा था, ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही थी, इसी के साथ साथ गैस्ट्रिक सिस्टम की सारी सिक्रेशंस और मोटेलिटी इंक्रीज होगी। जैसे स्लाइवा बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक एसिड स्टमक के अंदर वो बढ़ जाएगा, इसके अलावा इंटेस्टाइन में जो आपकी सिक्रेशंस हैं वो बढ़ जाएंगी। मोटेलिटी जो आपका ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक मूवमेंट हो रही थी गैस्ट्रिक सिस्टम के अंदर, वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये इन्हांस करेगा ब्रोंकियोलेटरल सिक्रीशंस, ठीक है, यानी ब्रोंकियोस को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। ये जीआईटी के साथ साथ लंग्स के ऊपर, लंग्स की ब्रोंकाई के ऊपर इफेक्ट बता रहे हैं कि वो कंस्ट्रिक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर एक इफेक्ट, अच्छा ये इन्होंने ड्रग दी हुई है मेथाकोलिन, ये ड्रग एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। मैंने आपको बताया है कि हमने 4 ड्रग्स पढ़नी है जो कि एस्टर नेचर में है। एक है एसिटाइलिन कोलिन, दूसरा है ये बेथाकोल, तीसरा है कार्बाकोल, और चौथा आपके पास आ जाता है मेथियोकोलिन।
मेथोक्लिन जो है ये भी असिस्ट करता है इन द डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा ड्यू टू ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्टिंग एंड प्रॉपर्टीज। तो आपके अस्थमा डिजीज़ है जिसमें पेशेंट जो है वो डिजीज रेस्पिरेटरी डिजीज होता है उसे, तो उसमें क्या होता है आपके पास ये ब्रोंक्योल्स कंस्ट्रिक्ट हुए हुए होते हैं। सो मेथोक्लिन उसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ होता है कि हमें पता लग जाता है कि वाकई इस पेशेंट को अस्थमा का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ये यूरिनरी सिस्टम के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। ये इंक्रीज कर देता है टोन ऑफ डायलेटरल मसल्स जो कि आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं। इसके साथ साथ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है। आपको पता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट की सिचुएशन है तो यूरिनेशन में इंक्रीज ही होना है। इसके साथ साथ ये सिलियरी मसल्स आइज के ऊपर ये दिखा रहा है कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपका प्यूपल स्फिंक्टर मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो आपका जो प्यूपल होगा आई का वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये इफेक्ट आ गए एसिटाइलिन कोलिन के। नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कवर करेंगे बेथमाकोल के क्या इफेक्ट है और फिर कार्बाकोल को। इन तीन ड्रग्स को हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट ड्रग नेक्स्ट टॉपिक में होगी। सो बेथमाकोल को आप देख सकते हैं ओनली ऑन द मस्कुलर रिसेप्टर्स। सो इसका क्या मतलब है कि अगर वो मस्कुलर रिसेप्टर्स पे से इफेक्ट कर रहे हैं तो वो निकोटीन रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके पास एक मिथाइल ग्रुप होता है। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी डिफरेंस पता लग सके। तो यहाँ पर आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये एसिटाइलिन कोलिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप क्वार्टरिन अमोनिया देख सकते हो कि अमोनिया के साथ 4 कार्बन है, ये क्वार्टरिन अमोनिया हो जाता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है एसिटाइलिन का। अब बाथमाकोल में 2 चेंजिंग होगी, एक वही का वही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की एडिशन हुई है और दूसरा यहाँ पर ये अमोनिया का NH2 का अमाइन का ग्रुप जो है वो ऐड अप हो गया। तो ये बाथमाकोल बन जाती है। अगर आप यही कार्बोकोल का देखेंगे स्ट्रक्चर तो वही स्ट्रक्चर है, जस्ट यहाँ पर कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ था यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो ये कार्बाकोल बन गया। अच्छा, तो हमने देख लिया कि किस तरह से CH3 ग्रुप का डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से निकोटीनिक रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क नहीं करता, सिर्फ मस्कुलर रिसेप्टर पे एक्ट करता है। तो अब इसका भी स्ट्रक्चर वही क्वार्टरी अमोनिया है, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ये अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोमाइल ईस्टर है, ठीक है। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर आ जाता है, मैंने जैसे आपको बताया है कि ये बिल्कुल कार्बोमाइल ईस्टर की तरह है, बस अनसब्स्टिट्यूटेड है और बिल्कुल एसिटाइलिन कोलिन के साथ स्ट्रक्चर रिलेटेड है। जस्ट 2 डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, तीसरा जो डिफरेंस आ जाता है इसका कि एसिटाइलिन कोलिन जो है वो हमने कहा है कि एसिटाइलिन एस्टरेज के साथ क्लीवेज हो जाता है उसका, कोलिन और एसीटेट के अंदर वो डिवाइड हो जाती है, जबकि प्लाज्माकोल और कार्बाकोल इन दोनों के साथ ये चीज़ नहीं होती है। ये दोनों जो है ना एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के अलावा किसी और एंजाइम किसी और एस्टरेज के साथ हाइड्रोलाइज होंगे, ठीक है। ये उसके साथ यानी ACHE ये वही एंजाइम बताया हुआ है एसिटाइलिन कोलिन एस्टरेज, ये उसके साथ नहीं होंगे, हाइड्रोलाइज किसी और एंजाइम के साथ होंगे इन दोनों का, ठीक है। ड्यू टू द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब और इसकी क्यों निकोटिनिक एक्शन नहीं कर रहा या निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर रहा, तो वो इसकी वजह बता दी हुई है कि मिथाइल ग्रुप, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इसका ड्यूरेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 आवर ड्यूरेशन है, जबकि एसिटाइलिन कोलिन में हमने कहा कि इसका एसिटाइलिन कोलिन जो रिसेप्टर हमारी ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उससे भी ज़्यादा ये ड्यूरेशन है और इसका 1 आवर का ड्यूरेशन है। अब हम इसके कुछ एक्शंस देखने वाले हैं कि जैसे हमने एसिटाइलिन कोलिन का देखा था, अब हम इसके एक्शंस देखेंगे। जैसे इसके एक्शन सबसे पहले आई पे, कि आप खुद एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ इसमें लिखा हुआ कि ये आइज के पीपल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। इसी तरह अगर आप इसकी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की बात करते हैं तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे इंटेस्टाइन में मोबिलिटी इंक्रीज है, स्टिमुलेट द डायलेटर मसल्स ऑफ ब्लैडर, ठीक है। वही स्पिंटर्स को रिलैक्स करेगा, मसल्स को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करवाएगा और यूरिनेशन को स्टिमुलेट करेगा। ये तो बिल्कुल वही सेम एक्शन हो गया जैसे इसमें था, ठीक है, GIT और यूरिनेशन का। दैन इसका कुछ थेरेपेटिक यूज़ है। जैसे एसिटाइलिन कोलिन का हमने कहा कि उसका कोई थेरेपेटिक यूज़ नहीं है क्योंकि 2 रीजंस है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल एक्शंस हैं, डिफिजन हो सकता है और दूसरा हमने एक्शन ये पढ़ा था कि वो उसकी हाफ लाइफ कम है जिसकी वजह से जल्दी से वो एंजाइम से मेटाबोलाइज हो जाता है। जबकि इसके थेरेपेटिक यूज़ ये हैं कि यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहा है। अब यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? ये ट्रीट कर रहा है यूरिन के इश्यूज़ के साथ। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जिसको यूरिन के साथ कोई प्रॉब्लम है, उसको यूरिन कम आ रहा है
या कोई भी इस तरह का यूरिन का प्रॉब्लम है और आप उसको सोल्व करना चाहते हैं और आप इस तरह से सोल्व करते हैं कि उस पेशेंट की यूरिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो आप उसको उस थेरेप्यूटिक यूज़ करने के लिए आप उसको बाथमाकोल की ड्रग दे सकते हैं। तो ये एंटोनिक ब्लैडर को स्टिमुलेट कर रहा है, वही आपकी यूरिन को इंक्रीज करवा रहा है। इसका नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स वर्ड लिखे हुए हैं बट आप उनको इजी करके इजी वर्डिंग में एक सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ़ यू हैव स्टोन इन JIT एंड यूरिनरी यू कैन नॉट यूज इट। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल किसी की किडनी में स्टोन है या किसी के बाजुकात होता है कुछ लोगों का कि उनके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई ना कोई, स्टमक के अंदर कोई प्रॉब्लम है या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की आपकी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। यानी नॉन ऑब्स्ट्रक्शन यूरिनरी रिटेंशन होनी चाहिए। नॉन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो बाथमाकोल उस केस में यूज़ होगा। बाथमाकोल में आल्सो बी यूज टू ट्रीट द न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आपको कोई न्यूरो का कोई प्रॉब्लम है, नर्व्स कुछ डिस्टर्ब हैं, तो तब भी आप बाथमाकोल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मस्कुलर रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा, निकोटीन के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, मस्कुलर के ऊपर एक्ट करता है। इससे न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट। आप सब लोगों को पता है कि अगर कोई अच्छे इफेक्ट्स हैं, कोई थेरेपेटिकल यूज़ हैं, तो एडवर्स इफेक्ट भी लाजमी होंगे। अच्छा, हमने एसिटाइलिन कोलिन के केस में एडवर्स इफेक्ट नहीं देखे थे क्योंकि हम उसको थेरेपेटिक यूज़ ही नहीं कर रहे, इसलिए हमने उसके एडवर्स इफेक्ट भी नहीं देखे थे। बट हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बाथमाकोल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसके एडवर्स इफेक्ट भी देख रहे हैं। क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट, देखें आज जब आप किसी भी ड्रग को प्रोलॉन्ग एक्शन कर देते हैं या आप बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करने लग जाते हैं, तो उसकी रीज़न क्या होती है कि स्वेटिंग आपको ज़्यादा होगी। यहाँ पर साइन के ज़रिए से उन सारे सिम्टम्स को बताया गया, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, आपका स्लैवर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फ्लशिंग होगी, आपका जो चेहरा है वो रेड रेड होना शुरू हो जाएगा। फ्लशिंग का मतलब क्या है, रेड फेस हो जाएगा। डिक्रीज आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्रोंकियोस्पैम, आपकी जो ब्रोंकाई हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। जब ब्रोंकाई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो हम उनको ब्रोंकियोस्पैम कहते हैं। Atropine sulfate can be associated to overcome severe cardiovascular and bronchial receptors. तो यहाँ पर भी हमने एट्रोपिन यूज़ किया था, ठीक है। इस केस में यहाँ पर भी हम एट्रोपिन सल्फेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस केस में आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आपके ब्रोंकिया कंस्ट्रक्ट कर देंगे बहुत ज़्यादा। तो ये सीवियर केस आ जाता है, तो हम इसको फ़ौरन किससे ट्रीट करेंगे, एट्रोपिन सल्फेट से ट्रीट करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फिर कार्बाकोल, कार्बामाइल कोलिन भी हम इसे कहते हैं। सो ये अब जिस तरह मैंने ब्रोंकियोकोल की बात की थी कि ये सिर्फ मस्कुलर रिसेप्टर पे करता है, बट जब आप कार्बाकोल के ऊपर आते हो तो ये दोनों के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। ये एक्शन इसका एसिटाइलिन कोलिन के साथ मिलता है कि ये मस्कुलर और निकोटीनिक दोनों एक्शन दे रहा है। ईस्टर है वही कार्बामिक एसिड का, लेकिन ये एसिटाइलिन कोलिन एस्ट्रेज के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होगा। इसी की तरह वाली बात होगी, ये किसी और एंजाइम से होगा। बायो और ट्रांसफॉर्मेशन बाय अदर एस्ट्रेज बट एट मच स्लोअर रेट। बायो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, यानी इसकी मेटाबॉलिज्म एस्ट्रेज किसी और एस्ट्रेज से होगी, इस एसिटाइलिन कोलिन एस्ट्रेज से नहीं होगी, और मच स्लोअर रेट पे होगी। यानी इसकी जब मेटाबॉलिज्म रेट होगा वो बहुत कम होगा, यानी ज़्यादा देर तक ये ड्रग आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसके कुछ एक्शंस दिए हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, JIT के ऊपर और आइज के ऊपर, इन तीन ऑर्गन्स के ऊपर ये इफेक्ट करता है। जैसे अब इन दोनों के अगर आप कार्डियोवास्कुलर और JIT के ऊपर ये क्या करता है, पहले उसको स्टिमुलेट करता है फिर उसको डिस्टिमुलेट करता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये गैंग्लियन को पहले स्टिमुलेट करेगा, फर्स्ट स्टिमुलेट एंड देन डिप्रेसेस दिस सिस्टम, ठीक है। देन इसका आइज के ऊपर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल वही मिमेटाइज करता है एक्ट ऑफ एसिटाइलिन कोलिन। जैसे एसिटाइलिन कोलिन आइज के ऊपर मियोसिस कॉज करता है। मियोसिस का क्या मतलब है, यानी पीपल को कंट्रैक्ट करवाता है। जब भी पीपल कंट्रैक्ट होता है तो उसको हम मियोसिस का नाम दे देते हैं, ठीक है। स्पैज्म हो जाएगा, सीलियर मसल्स भी आपके कंट्रैक्ट हो जाएंगे, सो ये इसका आइज का आ जाता है। तो आपकी विजन एक जगह फिक्स हो जाएगी, यानी आपके सीलियर मसल्स इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ना कि आप ये जो आई का पीपल है इसको हिला नहीं सकते, एक जगह फिक्स हो जाएगा, आपकी विजन फिक्स हो जाएगी, तो आपको एक जगह फोकस करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जाहिर बात है आप नहीं देख सकेंगे। और इसको भी ट्रीट
करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा तीनों ड्रग्स में एट्रोपिन जा रहा था, सिर्फ जब हमने बाथमाकोल की बात की तो उसमें हमने एट्रोपिन सल्फेट दिया था, बाकी सब में एट्रोपिन मस्कुलर ब्लॉकर के तौर पे यूज़ हो रहा है। सो ये मस्कुलर ब्लॉकर हम आइज़ के लिए दे रहे थे। सो अब थेरेपेटिक यूज़ इसका आप लोग देख सकते हैं, एक तो ये है कि ये हाइपरटेंसी है, दूसरा ये है कि जो रिसेप्टर्स हैं ये नॉन सेंसिटिव है, यानी ये सॉरी मस्कुलर कॉर्निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं। नो रिसेप्टर नॉन सिलेक्टिविटी का मतलब ही यही है कि ये सिलेक्टिव नहीं है, ठीक है, दोनों रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, कोई सिलेक्शन नहीं है इसकी। रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लंबा ड्यूरेशन है इसका। पासमाकोल में हमने देखा था कि 1 घंटे का रिएक्शन होता है इसका प्रोलॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा इसका जो हमारे पास रियल यूज़ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पासमाकोल इज़ रियली यूज, ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका बट यूज़ है सही, ठीक है। हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि पाइलोकार्पिन और दूसरा आ जाता है बाथमाकोल, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। कार्बाकोल यूज़ हो रहा है लेकिन आप देख रहे हैं कि सिर्फ आइज़ में, बाकी में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये, ठीक है। सो ये सिर्फ इंट्रा ओक्यूलर कवर्ड हमेशा हम आइस के लिए यूज़ करते हैं, हम आइस में डालेंगे इसे। आइस में सर्जरी के दौरान हम म्यूसिस जिप करवाना चाहते हैं तो तब हम लोग डालते हैं, और ये इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को भी आपका कम कर देता है, तो इसलिए ये इस ट्रीटमेंट की यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट भी है, ये एडवर्स इफेक्ट इसका ये है कि ये लेक ऑफ सिस्टमेटिक पेनिट्रेशन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है ये सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम कार्बाकोल को आइस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे सर्जरी हो रही है और हम लोग इंट्राओक्यूलर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इसको आइस में अप्लाई कर देते हैं, सो इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन द ब्लड ड्यू टू द क्वाटरनरी अमाइन। मैंने इसको स्ट्रक्चर आपको दिखाया क्वाटरनरी अमाइन के अंदर कैसे है, तो ये अब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड के अंदर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी क्वाटरनरी अमोनियम या अमाइन कंपाउंड्स होंगे वो पोलर और हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो मेम्ब्रेन से वो क्रॉस नहीं करते, तो इसलिए ये फिर ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होंगे, इसलिए ये लेक करते हैं सिस्टमेटिक पेनिट्रेशन। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, पूरे ब्लड में, और पेनिट्रेशन का मतलब होता है अब्जॉर्ब होना, तो ये ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगी, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई गई है, ये अनट्रीटेड आइज है, इसमें हम लोग क्या करें, म्योसिस जब हम करवाएंगे यानी इसके पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल बड़ा सा है, यहाँ पर आप पीपल देख सकते हैं कितना छोटा हो गया। सो यहाँ पर हमने पाइलोकार्पिन या कार्बाकोल, ठीक है, दोनों पाइलोकार्पिन भी कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, कार्बाकोल भी कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, तो इस तरह से हम ट्रीट करेंगे। अब ये अनट्रीटेड आई है और हम इसको डायलेट कर देते हैं, मेटाइलेशन ऑफ पीपल को हम कहते हैं मिड्रासिस, जैसे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल को मियोसिस कह रहे हैं, तो डायलेशन ऑफ पीपल को हम मिड्रासिस का वर्ड देते हैं। जब वो करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा पीपल हो गया। सो ये इसको इस आई को ट्रीट करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं। सो आप देख रहे हो कि एट्रोपिन की तो इम्पोर्टेंस हर जगह है, हर जगह से ये ट्रीट हो रहा है। सो जहाँ कहीं भी एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं एट्रोपिन वहीं आ रहा है और ट्रीट कर रहा है। बट आपने ये याद रखना कि यहाँ पर ये डायलेशन को ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन आ गया। सो दैट्स फॉर ऑल अबाउट द टूडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइलोकार्पिन करेंगे क्योंकि पाइलोकार्पिन हमारा अल्कोहलाइड के नेचर्स में आ जाता है, तो इसलिए मैं आज इसे कवर नहीं कर रही इस लेक्चर में, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। बाकी ड्रग्स जो है वो आज हम लोग देख चुके हैं, कार्बाकोल भी हमने देख ली, बाथमाकोल भी हम लोग देख ली, एसिटाइलकोलिन भी हम लोगों ने देख ली है। सो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों ड्रग्स समझ में आ गई होंगे, और आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। और अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया या कोई बात आपको कन्फ्यूजन कर रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको उसको ज़रूर आंसर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।